अस्सलाम वालेकुम। मैं अदनान अली फारूकी हूँ और मैं मधुमाला के बेहाफ पे आपको ये लेक्चर दे रहा हूँ जिसका टॉपिक है पॉलिटिक्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड मेकिंग ऑफ सिविल सोसाइटी। इस बात को समझना ज़रूरी है कि आज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में सिवाय 2-3 मुल्कों के, मैक्सिमम 5 मुल्कों के अलावा बाकी जितने भी 200 से ज़ायद स्टेट्स हैं उसमें गवर्नेंस और पॉलिटिक्स का जो मॉडल है इट इज़ दैट ऑफ डेमोक्रेसी एंड therefore we can say that it is a truly universal and global paradigm of politics and government as we know today. डेमोक्रेसी का तसव्वुर अमूमन ये होता है कि एक मुल्क और उसमें जो भी कानून बनते हैं, जो भी पॉलिसीज बनती हैं, वो उसके सिटीजन्स के डिज़ायर्स के मुताबिक बनती हैं। Democracy has its own weaknesses and democracy has its own advantages as well. However, today in the globalized world, we seldom talk about the disadvantages of democracy. एक बात मैं आपको बताता चलूं और वो ये है कि डेमोक्रेसी का तसव्वुर इस्लाम में भी है, डेमोक्रेसी का तसव्वुर ईस्टर्न कल्चर्स में भी है और डेमोक्रेसी का तसव्वुर वेस्टर्न कल्चर में भी है। But today, and therefore, we have many strains and types of democracies. आपने सुना होगा presidential form of democracy, parliamentarian form of democracy, socialist democracy, republican democracy. ये सारे different हैं, लेकिन हम इनकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे। इस बात का बताने का मकसद ये है कि डेमोक्रेसी आज की दुनिया में खुद एक कंफ्यूजन का शिकार हो गया है और जो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है वो कुछ हद तक, बल्कि बहुत हद तक डिटेरियरेट भी कर गई है। सो most of the problems in society that we see today is also because of democracy. Democratization of trade, democratization of armies, democratization of politics and government. It might seem to be a very novel and interesting idea, full of joys and happiness for the populace, but that is not the case. Democratization of the state, trade, आर्मी, इसका मतलब ये है कि हर चीज लोगों और अवाम की उमंगों के ऐन मुताबिक हो रही है, लेकिन क्या ऐसा है? नहीं। Not even in the West. There is very severe and serious media censorship in the West. Despite their notions of free speech, you cannot condemn a lot of their cultural values. You cannot condemn a lot of their constitutional values. लिहाजा the notion of freedom in Western democracy एक questionable phenomena बन गया है। दूसरी बात यह है कि सिविल सोसाइटी क्या चीज होती है। बुनियादी तौर पे सिविल सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जहां कानून की बालादस्ती हो, और हम कानून की बालादस्ती को जब तसव्वुर करते हैं और हमें जब सिविल सोसाइटी का ख्याल आता है तो हम ऑटोमेटिकली एक काम करते हैं कि भाई यहाँ ताकत के जोर पे कुछ नहीं होता, लेकिन हम देखते हैं कि दुनिया में ताकत के जोर पे बहुत कुछ हो रहा है। The different actors of the international system, non-state actors, non-state armed groups, states,
मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब अपनी अपनी ताकत भी चला रही होती हैं. So where is the civil society in this globalized world? This is the big question. And in a lot of instances, we see that the notion of democracy and civil society, which is so important and theoretically so pleasing and so appeasing, aman create hota hai isse. But that is in theoretical concepts. Once we look at it seriously and research upon it seriously, we find that theoretically and practically, democracy and civil society are poles apart, poles asunder. So this is a challenge for the globalized world, either to return to to the uh, to the lost tenets of democracy and civil society, or to create a new kind of governance in the world. डेमोक्रेसी जो है वो कोल्ड वॉर तक उसका कोई कंपटीशन भी था. कोल्ड वॉर 1950 से लेके 1992 तक चली. कोल्ड वॉर का तस्वुर आप लोगों को शायद मालूम होगा कि यूएसएसआर और यूएसए के दरमियान एक सर्द जंग थी. सर्द जंग उसको इसीलिए कहते हैं कि इन दोनों बड़े ग्लोबल सुपर पावर्स जो उस वक्त थे उनकी कोई बराह रास्त डायरेक्ट वॉर नहीं हुई. बट बेस्ड ऑन दीज टू powers competing, there were many regional wars. War between Libya and Chad, war between India and Pakistan, creation of Balochistan, Bosnian War, Serb cleansing, Falkland Island wars fought between Argentina and Brazil. ये Palestine Israel war, Arab Israel war, ये सारी वॉर्स इसलिए भी हुई, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स थी, ग्लोबल नहीं थी, रीजन्स में लड़ी गई. लेकिन उनके पीछे मामला यही था कि दो सुपर पावर्स के क्लब्स थे और उन्हीं की लड़ाइयाँ ये लड़ते थे, छोटे मुल्क. लेकिन कोल्ड वॉर जो 1992 में एंड हुई और यूएसएसआर कोलैप्स कर गया, तो कम्युनिज्म भी कोलैप्स कर गया और इस तरह डेमोक्रेसी बिकेम द सोल गवर्नेंस and political model of the world. It hence dominated the whole world in ideological and political forms. Now, democracy is a model that preaches political participation of the citizens. What does this political participation mean? In spirit, it means कि अवाम जो है वो हुकूमत बनाने में, कानून बनाने में, जंगों को लड़ने में हाँ या ना उनकी बहुत जरूरी है. ये हाँ या ना इतनी जरूरी है कौमों के लिए, और कौमों की हाँ और ना इन सारे मामलात में यही दरअसल डेमोक्रेसी है. बात थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको ये याद दहानी करते चलूं कि इस्लाम में भी एग्जैक्टली यही मॉडल है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है. फॉर एग्जाम्पल, खलीफा का इलेक्ट होना, उसमें भी लोगों का हाथ है. कैबिनेट का बनना, उसमें भी लोगों का हाथ है. और अगर आप इमामत के कॉन्सेप्ट की बात करें, तब भी इमामत के कॉन्सेप्ट में ये है कि अल्लाह ताला खुद इमाम चुनते हैं, लेकिन वो इमाम जो हैं वो भी लोगों की मशावरत से और उनसे फैसले किया करते थे. मशावरत बहरहाल अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इसका एक एम्फेसिस है, और बुनियादी तौर पे मशावरत ही यानी कि कंसेंसस बिल्ड करना आफ्टर डिबेट, आफ्टर डेलिब्रेशन, यही दरअसल डेमोक्रेसी है. सो इस लिहाज से डेमोक्रेसी अच्छी है, लेकिन और जो मेजॉरिटी फैसला करती है वही लागू होता है. लिहाजा इस पॉइंट ऑफ व्यू से
सिटीजन्स अपने वोट के जरिए पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करते हैं. Therefore, the system of voting is known as political participation. However, we see that anywhere in the West or East, आप एक दफा जब एक पॉलिटिशियन को इलेक्ट करके ले आए, उसके बाद वो अपनी मर्जी चलाता है और उसने जो जो बोला होता है वो कुछ पूरा नहीं करता और अवाम 5 साल के लिए उसकी यरगमाल. दिस इज द काइंड ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी ऑफ डेमोक्रेसी. लेकिन ईस्टर्न या इस्लामिक डेमोक्रेसी में ये है कि आप खलीफा को फौरन तंबी कर सकते हैं, इसको पकड़ भी सकते हैं, इसको निकाल भी सकते हैं. और खलीफा जो है वो लोगों की अप्रोच में होता है. ऐसे नहीं कि भाई एमएनए, एमपीए, सेनेटर, कांग्रेसमैन इलेक्ट होके आ गए, उसके बाद अवाम ढूंढती फिर रही है, लोकल बॉडी का नुमाइंदा या नाज़िम भी नहीं मिलता आपको. So this is a great flaw of Western style of democracy. अगर आप इस्लामिक फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को देखें तो खलीफा या इमाम मस्जिद में आएंगे और वही इमाम या खलीफा लीड करेंगे प्रेयर्स को और लोगों के बीच में होंगे. लिहाजा शिकायतें भी सुनेंगे, गुस्सा भी बर्दाश्त करेंगे, चीज़ों को समझेंगे भी, इश्यूज को समझेंगे भी. तो बेसिकली द वेस्टर्न काइंड ऑफ डेमोक्रेसी which is the practice of today's globalized political world has its flaws. Political participation का मतलब एक और भी है और वो ये है कि डेमोक्रेसी ये इजाज़त नहीं देती कि जो रियाया है या सिटीजन्स हैं वो हथियार उठाएं या हंगामा करें या अश्तियाल अंगेजी करें. लेकिन अगर आपको एहतजाज करना है तो आप एहतजाज कर सकते हैं. बट इफ यू जस्ट लुक एट दिस at international media, you will be able to see that in France, in Germany, in England, in America, पुलिस जो है वो पीसफुल रॉयटर्स के ऊपर आंसू गैस फेंकती है, बेटन लाठी चार्ज करती है, सब कुछ करती है, जेलों में बंद कर देती है. तो वहाँ भी ये ख्याल है कि वहाँ बड़ी अच्छी डेमोक्रेसी चल रही है, ऐसा नहीं है. एंड latest researches statistically prove that democracy in the West is failing. In the last 30 years, most of the Western countries have seen decreasing voter turnout during elections. कम से कम वोटर निकला है 30 साल में वेस्टर्न डेमोक्रेसीज के अंदर वोट देने के लिए. तो व्हाट डज दिस मीन? ये जो रियाया है, अवाम है, वोटर है, उसको इस सिस्टम में एतमाद ही नहीं रहा है. एक मजे की बात यह है कि 5% वोटर टर्न आउट भी रहा है. 5% वोटर टर्न आउट करोड़ों की आबादी में, और फिर भी उसको हम मेजॉरिटी समझें. दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां 50% वोटर टर्नआउट हुआ हो इलेक्शंस के दौरान. नॉट इवन 50%. And I'm talking about registered voters. I'm not talking about infants and babies and children who have not reached the age of voting. तो ये एक बहुत सोचने की बात है कि अगर वाकई वेस्टर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो पूरी दुनिया में है, क्योंकि वाकई मेजॉरिटी की बनती है. दूसरी बात ये भी है कि अगर आप दुनिया की मेजॉरिटी देखें, वो अनपढ़ है, अनअवेयर है, जाहिल ज्यादा लोग हैं, पढ़े लिखे कम हैं. तो अगर आप वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे हैं तो आप जाहिलों के भी वोट गिन रहे हैं जिनको कुछ नहीं पता है. दे आर नॉट अवेयर ऑफ हाउ द पॉलिटिकल एलीट comes for vote and then disappears for the next 5 years. They only work for themselves. So these are some very glaring and serious flaws of Western democracy. और वेस्टर्न स्कॉलरशिप खुद भी तनकीद करती है कि ये वो डेमोक्रेसी नहीं है जो कि शुरू में थी. So either we need to return to the roots of democracy
or we need to introduce some new function or system to replace democracy. Democracy also stresses upon democratic institutionalization. मतलब कि हर डेमोक्रेसी जो है वो कुछ इदारे बनाती है, जजों का इदारा, पुलिस का इदारा, अकाउंटेबिलिटी का इदारा, टैक्सेशन का इदारा, रेलवे का इदारा, ट्रेड और कॉमर्स को मॉनिटर करने के लिए इदारा, पोस्टल सर्विस चलाने के लिए इदारा। ये इन सारे इदारों में भी शदीद तोड़ फोड़ हो गई है और डेमोक्रेसी ने एक और चीज इंट्रोड्यूस की है जिसको हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन. It is not directly linked with democracy, but it is linked with neoliberalism, which is the most latest version of capitalism. Now, capitalism and democracy has a very, very deep connection, and neoliberalism is the latest form of capitalism, and it is highly dependent upon democracy. Democracy cannot survive without neoliberalism or capitalism, and vice versa. तो आप जो अक्सर सुनते हैं कि जी प्राइवेटाइज हो जाना चाहिए, स्टील मिल प्राइवेटाइज, पीआईए प्राइवेटाइज, कराची इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइज, सुई सदर्न प्राइवेटाइज, रेलवे प्राइवेटाइज. जब सब कुछ प्राइवेटाइज हो जाएगा तो फिर रियासत की जरूरत क्या होगी? क्या करेगा रियासत? देखते ही देखते अमेरिका में तो ये नहज आ गई है, डिबेट इस लेवल की हो गई है कि फौजें भी रखना जरूरी नहीं है, फौजें भी प्राइवेट आर्मीज होनी चाहिए, और वहां ये हो रहा है. There are many companies which offer private soldiers. ये क्यों गलत है? क्योंकि रियासत फिर रहेगी कहाँ, किस वजह से? अमेरिका में तो जो पैसे छापने का जो इंस्टीट्यूट है, द फेडरल रिजर्व, जैसे कि यहाँ स्टेट बैंक है, तो अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व है, इवन दैट हैज बीन प्राइवेटाइज्ड. इट इज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट पीपल हु डिसाइड कि कितना पैसा कितना फ्लोट करना है, कितना खींचना है. Meaning to say, some people, not the state, some private people are responsible for creating artificial inflation and artificial devaluation of money. So democracy is no more that sweet, peace-loving idea of governance. It has become somewhat very lethal. So we need to look at democracy as a system which needs a lot of rectification. Now, since democracy stresses upon an independent jury, it considers civil society as a social setup where laws rule. Meaning to say कि डेमोक्रेसी में अदल का भी बहुत बड़ा एक हाथ है. आज हम ये देखते हैं कि कानून साजी से लेके अदल तक ये सारा कुछ प्राइवेटाइज हो गया है. जब सब कुछ प्राइवेटाइज हो गया है और हर चीज पैसे के बेसिस से चल रही है, तो फिर शायद इसीलिए हम देखते हैं कि बड़े बड़े फैसले भी पैसों की एवज चलते हैं. हम ये देखते हैं कि बहुत सारे इंटरनेशनल क्रिमिनल्स पैसों की बेसिस में लॉ को मैनिपुलेट कर लेते हैं. अगर आप समझते हैं सिर्फ पाकिस्तान में जज बिकते हैं, ऐसा नहीं है, दुनिया जहान में यही हो रहा है. अमेरिका तक में भी ये हो रहा है. इटली में अभी 1.5-2 साल पहले एक जज बिक गया और एक इंसान को इंसाफ नहीं मिला, और उसने उसी वक्त उस इंसान ने पिस्टल निकाली और जज को भरे कोर्ट के सामने 6 गोलियां मार दी, जज भी मर गया. This is what will happen if you privatize everything. Privatization means the destruction of the state. और ऐसे इदारे जो कि बहुत अहम होते हैं, जब वो प्राइवेट लोगों के हाथ में जाते हैं तो फिर वो होता है जो हम देख रहे हैं कराची वाले, कि कराची इलेक्ट्रिक अपनी मर्जी के बिल लंबे लंबे ठोक देती है, और अगर आप बिल अदा ना करें तो आप किसी के पास जाके कुछ नहीं कह सकते. इसी तरह हम देखते हैं कि अगर हाउसिंग, घर बनाना, लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम, ट्रेडिशनली रियासत को ये काम करना चाहिए, लेकिन प्राइवेटाइज हो गया. तो बहरिया टाउन ने पता नहीं कितने छोटे छोटे गरीब
गांव को उड़ा दिया। अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके प्लीज इसमें रिसर्च करें। और जो लैंड उन्होंने हजारों रुपए की खरीदी, वो करोड़ों रुपए की बेची है। द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ वन हाउस ऑफ बैरिया टाउन और एनी सच ह्यूज मेगा बिल्डर, बात सिर्फ बैरिया टाउन की नहीं है, ये एक एग्जाम्पल है, लेकिन दुनिया भर में यही हो रहा है। 120 घर का जो प्लॉट, 10 का जो आप घर बना बनाया खरीदते हैं, वो आज 2 करोड़ रुपए का है। उसकी जो लागत है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं है। ये भी मैं बहुत ऊंची बता रहा हूं आपको। 50 लाख का अगर बिकेगा तब भी उसमें 20 लाख, शायद 15 लाख, 20 लाख बिल्डर को बचते हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कि बिल्डर का तो फायदा है और अवाम बेचारी अपनी पैसे जोड़ जोड़ के वो सब कुछ कर रही है। So democracy is linked with a lot of different phenomena. It is linked with capitalism. It is linked with privatization, and all these आम इंसान को समझ नहीं आता, लेकिन इनकी बहुत सीरियस और खतरनाक डायनामिक्स हैं। करप्ट पॉलिटिशियंस, करप्ट ब्यूरोक्रेसी। आपको अगर लगता है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो दुनिया जहान में करप्ट नहीं है, तो मैं आपको एक इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर का कॉल सुना रहा हूं। That England has created a missile, a rocket that does not work, and you cannot even fire it. ये एक बहुत तंजिया जुमला है। एक ऐसा रॉकेट जो कि काम नहीं करता, लेकिन आप उसको फायर भी नहीं कर सकते। एक ब्यूरोक्रेट को सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान या प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका फायर कर सकता है, फायर नहीं हो सकता वो। तो वो काम कम करता है, करप्शन ज्यादा करता है। अनदर स्टेटिस्टिक, ग्लोबल स्टेटिस्टिक मैं आपको बता रहा हूं। 50% of global bureaucracy has committed some level of corruption in every state, and 80% of politicians are involved in corruption. Panama Papers जो आए हैं उसमें 80% लोग पॉलिटिशियंस हैं और ब्यूरोक्रेट्स हैं, और 20% लोग टॉप लेवल के बिजनेसमैन हैं। यू कैन इमेजिन द गिफ्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी। सो डेमोक्रेसी वैसे तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वो बिगड़ती बिगड़ती अब बिगड़ गई है। सो तो लिहाजा कानून भी एक नाम निहाद रह गया है, और सिविल सोसाइटी का क्याम जो चूंकि लॉ पे होता है वो अब बाकी नहीं रहा। तो हम वापस स्टेट ऑफ नेचर की तरफ चले गए हैं। स्टेट ऑफ नेचर का मतलब है जंगल का कानून, जहां ताकतवर जीतता है और कमजोर हारता है। हमेशा सही या गलत की डिबेट नहीं होती। So are we living in a civil society or in a state of nature? This is the most urgent question which is occupying the minds of social sciences today. Active participation का मतलब वोटिंग भी हो सकता है, कैंपेनिंग भी हो सकता है, प्रोटेस्ट भी हो सकता है, मीडिया में आके शोर मचाना, सोशल मीडिया में आके हल्ला बोलना, ये सारी चीजें जायज हैं, लेकिन इनको दबाया भी जाता है। बहुत आसानी से एक पीसफुल कैंपेन को राइट का नाम देके, हल्ला का नाम देके, सिविल डिसोबीडियंस का नाम देके उसको क्रैक डाउन कर दिया जाता है। डेमोक्रेसी इज बिकमिंग मोर एंड मोर अथॉरिटेटिव इन द डेवलप्ड वर्ल्ड। एक जमाना था कि डेमोक्रेसी वाज नोन एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट which is by the people, from the people and for the people. लोगों के लिए, लोगों की तरफ से और लोगों में ही से। मीनिंग टू से बाय द पीपल, लोगों की तरफ से। फ्रॉम द पीपल, लोगों के अंदर से ही कोई एक इंसान नुमाइंदा बन के आएगा। फॉर द पीपल, लोगों के लिए वो काम करेगा। अगर आप समझते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा नहीं है और पूरे दुनिया में ऐसा है, पाकिस्तान में और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में बहुत बुरा हाल है, लेकिन डेमोक्रेसी इन द वेस्ट इज फास्टली बिकमिंग रिडंडेंट बिकॉज ऑफ दीज फेलियर्स, ग्रोइंग डिस्पैरिटीज ऑफ वेल्थ। हेल्थ केयर सिस्टम्स पूरी दुनिया में सिवाय 2 से 3 मुल्क
ऐसे हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, जिनको आप कह सकते हैं कि वो आइडियल डेमोक्रेसी में कुछ हद तक काम कर रहे हैं, काफ़ी हद तक काम कर रहे हैं। बल्कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अगर आप सीरियसली स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका और यूके तो डेमोक्रेटिक है ही नहीं, वहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं है। वहाँ लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया गया है कि आप वोट देते हैं, लिहाजा आप की हाँ और ना से तो गवर्नमेंट बनी है। तो लिहाजा मेकिंग दैट चॉइस बाय द पीपल कि हम किसको इलेक्ट करके लाएंगे इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एंड देयरफॉर पीपल मस्ट आल्सो बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर चूजिंग देयर लीडर्स। एक इंसान जो कि गलत करप्ट इंसान को सपोर्ट करता है, उसको डिनाई करना, उसको बाइकआउट करना भी हमारा फर्ज है। क्योंकि और अगर हम किसी गलत इंसान को वोट देते हैं और 5 साल तक वो हम पे मुसल्लत है, तो फिर ये इसका खमियाजा तो हम भुगतते ही हैं। इन वन वे और अनदर अकाउंटेबल तो हो जाते हैं हम। अजान शुरू हो गई है, इसलिए मैं 1 मिनट की ब्रेक लूंगा जब तक अजान खत्म नहीं हो जाती। Okay, so let's continue with our lecture. Civil society. Civil society basically कनेक्टेड है डेमोक्रेसी से, जैसे कि मैं आपको बता रहा था। और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो सिविल सोसाइटी के साथ पार्टनरशिप क्रिएट करती है। लिहाजा सिविल सोसाइटी का नोशन, एक तरफ तो मैंने आपको ये बताया कि जहां कानून हो, लेकिन सिविल सोसाइटी का एक और मतलब भी है। कुछ ऐसी बॉडीज हर रियासत में होती हैं जो कि उस रियासत की फलाह और बहबूद के लिए काम कर रही होती हैं। इसमें एनजीओज भी होती हैं, इसमें एकेडमिया यानी कि टीचर्स भी होते हैं, इसमें दानिश्वर इंटेलिजेंसिया के लोग भी होते हैं जिनको हम इंटेलिजेंसिया कहते हैं। इनमें और दीगर जर्नलिस्ट भी होते हैं। तो बुनियादी तौर पे सिविल सोसाइटी का एक तस्वुर तो ये है कि ऐसी सोसाइटी जहाँ कानून फॉलो होती है। बट इफ वी लुक एट इट इन अनदर वे, इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल comprising of all these people that I have just mentioned who work together for the betterment of the state. हर काम रियासत नहीं कर सकता, हर काम चूंकि रियासत नहीं कर सकता, लिहाजा रियासत की मदद करने के लिए ऐसे लोग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होते हैं, वो उनका काम ये होता है कि वो टीच तो करें लेकिन वो रिसर्च भी करें, और जो वो रिसर्चेस करते हैं उसकी बेसिस पे पब्लिक पॉलिसी और गवर्नमेंट पॉलिसी बनती हैं, फॉरेन पॉलिसी बनती हैं, जो
वेस्टर्न मुल्क इतने डेवलप्ड हैं वो इसीलिए हैं, वहाँ अलल टप पॉलिसीज नहीं बनती, वहाँ रिसर्च ओरिएंटेड पॉलिसीज बनती हैं. वेदर इफ यू वांट टू इंस्टॉल अ पॉलिसी फॉर एजुकेशन, तो एक एजुकेशनिस्ट जिसने अपनी सारी जिंदगी एजुकेशन में सर्व की है, उसको पता है इश्यूज का, उसको पता है सॉल्व कैसे होंगे, उसको पता है कि ट्रेंड्स क्या है, उसको पता है कि एजुकेशन कैसी दी जाएगी, उसी को वो काम करना चाहिए. तो वो जो रिसर्च करेगा, वो रिसर्च पेपर लिखेगा, वो जो पॉलिसी पेपर लिखेगा, वो गवर्नमेंट यूज करती है. इसी तरह देर आर पीपल हु आर एक्सपर्ट इन defense and warfare. There are people who are expert in engineering and industrialization, economics, medicine. So this research in society, which is controlled by civil society as a whole, it is extremely important for the state. अगर आप अमेरिका में देखें तो उस अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी थिंक टैंक्स बनाती हैं. वो थिंक टैंक्स कौन है? दे आर पार्ट ऑफ द सिविल सोसाइटी. अगर आप कनाडा की पूरी हुकूमती काबीना को देख लें, कैबिनेट को, each and every individual, each and every minister has worked in his profession for a good 25-30 years. और वो उसी मिनिस्ट्री का एक हिस्सा है. फॉर एग्जाम्पल, the Ministry of Health in Canada is a professional doctor who has worked in hospitals and in the health profession for 35 years. A person who is the defense minister is a person who is of very high academic caliber and a retired general. Similarly, a person who is the law minister is a very renowned lawyer who has also performed as a judge. A person who is an educationist is is a university professor. So इस लिहाज से जो ट्रूली सिविल सोसाइटीज होती हैं, वो सिविल सोसाइटीज में दोनों रंग वहां मैनिफेस्ट हो रहे होते हैं. यानी कि कानून भी प्रॉपर होता है और कानून साजी करने वाले लोग भी उसके कानून साजी में बहुत सीरियस रोल प्ले कर रहे होते हैं, रियासत की हेल्प करके. तो सिविल सोसाइटी का जो रोल होता है इन गवर्नमेंट एंड इन स्टेट, it basically connects three things. Number one, civil society informs the government and keeps check on the government कि आपका रोल है क्या. गवर्नमेंट का रोल ये नहीं है कि वो ब्यूरोक्रेसी के साथ उसको मैनिपुलेट करे, पुलिस को अपने नीचे लाए, जजेस को अपने नीचे लाए और डरा धमका के अपनी मर्जी के फैसले ले, अपनी मर्जी से तैनातियां करे. गवर्नमेंट का ये बिल्कुल रोल ही नहीं है. Why is the government involved in all this? गवर्नमेंट का काम ये है कि वो एक सिविल सर्वेंट को ऑर्डर करे कि भाई आपने ये काम करना है आपकी मिनिस्ट्री ने. अगर वो ना करे तो फिर आप उसको पीनलाइज कर सकते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से रद्दोबदल करना, नो, नॉट पॉसिबल. तो लिहाजा गवर्नमेंट जो है उसका ये रोल होता है कि उसके कुछ रोल्स होते हैं और कुछ रोल्स नहीं होते हैं. तो ये सिविल सोसाइटी गवर्नमेंट को याद दिलाती है और ये भी बताती है कि अगर आप ये काम करेंगे तो आपकी गवर्नमेंट अनस्टेबल होगी पॉलिटिकली. दूसरी बात ये होती है कि सिविल सोसाइटी जो है वो एक सोसाइटी की ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत बड़ा हाथ देती है. फॉर एग्जाम्पल, पोल्यूशन से क्या क्या खराबियां होती हैं, सिविल सोसाइटी आवाम तक ये मैसेज पहुंचाती है. किसी के साथ जाती हुई है अगर, तो सिविल सोसाइटी एक्शन में आती है और वो जजेस के ऊपर भी दबाव देती है, लॉ एनफोर्समेंट के ऊपर भी दबाव देती है और आवाम को भी बताती है कि ये हुआ है माशरे में, कल को आपके साथ भी हो सकता है. लिहाजा माशरे को वो बाशऊर करती है और उसको अनअवेयर से अवेयरनेस की तरफ, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लाती है. और ये दो काम करने की वजह से ऑटोमेटिकली सिविल सोसाइटी गुड गवर्नेंस, इफेक्टिव गवर्नेंस, करप्शन फ्री गवर्नेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है.
इसीलिए हम देखते हैं कि सिविल सोसाइटी कभी कभार गवर्नमेंट के साथ तसादम में भी आ जाती है। इसके अलावा एक रियासत को चलाने के लिए इंटेलिजेंस एजेंसीज की भी जरूरत होती है। गवर्नमेंट एक्टिविटीज को देखने के लिए भी एक वॉच डॉग चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट कुछ गलत तो नहीं कर रही। आपका एक सियासतदान कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आपके एक साबिक मेयर ऑफ कराची जो हैं, उनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो अमेरिका की टॉप लीडरशिप से और पेंटागन से जाके जाके मिले। क्यों मिले? उनका क्या काम है? वो कराची के मेयर हैं। Why was he invited in the Pentagon and the highest circles of United States administration? Why? ये एक सवाल है। क्या बेच के आया, क्या मुआहदा करके आया, कुछ नहीं पता। तो बुनियादी तौर पे सिविल सोसाइटी इस किस्म के काम भी करती है कि वो एक कड़ी निगाह रखती है। जस्ट बिकॉज आप वोट लेके आ गए हैं तो आप कुछ भी करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरह नेशनल प्रोजेक्ट्स जो स्टार्ट होते हैं वो अच्छे हैं या बुरे, इनके ऊपर भी सिविल सोसाइटी की निगाह होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक डैम बन रहा है पाकिस्तान में, या एक न्यूक्लियर एनर्जी क्रिएट करने के लिए एक प्लांट बन रहा है, क्या वो अच्छा है या बुरा है, या उसके बनने में कुछ खास लोगों की मदाखलत है, ये सब चीजें भी सिविल सोसाइटी मॉनिटर करती है। और लिहाजा सिविल सोसाइटी के एक बहुत इंपॉर्टेंट और ताकतवर बॉडी होती है ग्लोबली भी। ग्लोबल सिविल सोसाइटी भी है। बड़ी बड़ी नेशनल मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो हैं उनको चेक करने के लिए बहुत सारी सिविल सोसाइटीज हैं। ग्रीन पीस फॉर एग्जाम्पल। सो सिविल सोसाइटी जो है वो जरूरी इसलिए भी होती है कि वो तेजी से काम करती है, फौरन शोर मचाती है, फौरन मोबिलाइज कर देती है, और डिसेंट्रलाइज्ड होती है, यानी कि उसके अंदर कोई ये नहीं होता कि भाई पहले आप इनसे बात करें, फिर इनसे बात करें, फिर इनसे बात करें। वो बहुत तेजी से एक इशू को उछाल के ऐवान आला तक पहुंचा देती हैं। पिछली बारिशों में कराची का जो हाल हुआ और सिविल सोसाइटी ने जो शोर मचाया, उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने के इलेक्ट्रिक के ऊपर सुओ मोटो लिया। This is the role of civil society and the power of civil society. इसकी एग्जांपल्स फिक्सेट भी है। फिक्सेट कराची बेस्ड एक सिविल सोसाइटी का एक मेंबर है। अब तो वो माशाल्लाह पार्लियामेंट में भी आ गए हैं। लेकिन आलमगीर साहब का रोल क्या था? गटर के ऊपर लिख देते थे, फिक्सेट, डियर मिस्टर चीफ मिनिस्टर, काइंडली फिक्सेट। गटर के ऊपर लिख के चले जाते थे वो। तो इस किस्म की मूवमेंट्स अवेयरनेस क्रिएट करती हैं, वायलेंस क्रिएट नहीं करती। And they are extremely important to keep check on the government and on the bureaucracy that they're working on it. बाहर के मुल्कों में 2 एक्ट्स पास हुए जो कि सिविल सोसाइटी ने पास करवाए हैं, और वो ये हैं that all citizens have the right to information. This is known as RTI, right to information. मैंने टैक्स दिया तो ये रोड क्यों नहीं बनी और कहाँ पैसा खर्च हुआ? सालाना टैक्स अगर इतना जमा हुआ तो वो किधर खर्च हुआ? अकाउंटेबिलिटी करो, दो बताओ मुझे। एक आम आदमी चल के जा सकता है, सरकारी मुलाजिम को खत लिख के पूछ सकता है मुझे बताओ, और उसका सीसी कर सकता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान में कुछ हद तक ये लागू हुआ है, कुछ हद तक ये लागू नहीं हुआ है। हम देखते हैं कि चाहे हयात बलोच केस हो और दीगर हरासमेंट केसेस हो कॉर्पोरेट कल्चर के, उनमें भी सिविल सोसाइटी का एक बहुत अहम किरदार होता है। सोशल मोबिलाइजेशन में इनजस्टिस के खिलाफ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हाथ होता है, और ये सोशल मीडिया और इंटरनेट का भी बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। Therefore, by doing all this, you are basically
de-linking money and power. पैसा जिससे ताकत हासिल की जाती है, या ताकत जिससे पैसा कमाया जाता है, इन दोनों का बड़ा खतरनाक और नेगेटिव और इविल लिंक है. And civil society and law is responsible for effectively delinking them. अगर आपके पास पैसा है तो उसका मतलब ये नहीं आप ताकत से दंदनाते फिरें, और अगर आपके पास ताकत है उसका मतलब ये नहीं है कि आप अंधा करप्शन करें और पैसा कमाएं. That is why the growth of civil society is extremely important in society, without which no notion of democracy can flourish. Hope I have made some clarifications about these two topics. Until next time, Allah Hafiz.